Challenges are what makes life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. We are on our way to complete the challenge of 300 important questions for SEBI General Examination. This is the part 8th of your series. So we have completed 70 questions till now that are important for your SEBI General Examinations, and today we are going to do 10 more MCQs in the part 8. So let's start our discussion. Hello everyone, welcome to iExamB. My name is Prateek Taldar. Last question that we were discussing was, what is M0 also known as? So some of you have replied. The correct answer is D, reserve money. So reserve money को क्या designate किया जाता है as M0 and it includes currency in circulation. So जो भी पैसा आपका circulation में, first thing तो ये आ गया आपका. फिर bankers deposit with RBI, बैंक्स के जो डिपॉजिट चल रहे हैं आरबीआई के साथ में, एंड एनी अदर काइंड ऑफ रिजर्व. सो दीज थ्री थिंग्स सम अप टू बिकम M0 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व मनी. चलिए आज के क्वेश्चंस चालू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज RST लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. सेल्स इज गिवन एज 3 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन एज 1,40,000. प्री इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब इंटरेस्ट से पहले के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्री इंटरेस्ट. नेक्स्ट इन द क्वेश्चन वी हैव interest expenses 10,000, tax rate be given at 20%, and average total assets are also given as 10 lakh rupees. In this question we need to find out return on asset. So this is typically a question of ratio analysis chapter, आपका financial statement analysis chapter from commerce and accountancy, which is very important for your examination. We need to calculate the return on assets. assets के ऊपर हम कितना रिटर्न कमा पा रहे हैं. So the formula to calculate return on asset is basically net income, or I can say your profit after tax divided by average assets. So average total assets तो आपको given है, तो एक चीज तो बहुत ही sorted है, 10 lakh rupees. Now I need to calculate the amount of net income. Net income को हम बोलते हैं profit after tax, right? तो sales हमको given है 3 lakh. Cost of goods sold we need to deduct 1,40,000. So I'm having 1,60,000 here. This is my gross profit. Now there are so many operating expense, उनका total दे रखा है हमको 30,000. So I'm deducting this 30,000. 1,30,000 is the residual. ये हो गया आपका earning before interest and taxes, EBIT, जिसको हम operating profit भी कहते हैं. सबसे पहले we will be deducting the interest expense, which is 10,000. 1,20,000 हमारा आ गया. अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स में से I'll be deducting taxation 20%. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल लो, या फिर इसको नेट इनकम भी बोल लो, एक ही बात है, इज 96,000 ईयर. So 96,000 divided by 10 lakh rupee into 100 will be your return on asset, 9.6%. So C here is the correct choice. Next question is ABC Limited purchases during the year were 2 lakh rupees. 2 लाख रुपए की पूरी साल की परचेज थी ABC Limited की. The balance sheet shows an average accounts payable. अच्छा, average accounts payable. अभी काफी लोगों को यहाँ एवरेज अकाउंट्स पेएबल, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल में कंफ्यूजन हो जाता है. तो देखो बहुत सिंपल है, एवरेज अकाउंट्स पेएबल मतलब यू नीड टू पे इट. अब पैसा किसको देते हैं? उससे जिससे उधार पे खरीदा हुआ होगा कभी ना कभी. तो ये कुछ नहीं, क्रेडिटर ही है, इसका नाम एवरेज अकाउंट्स पेएबल लिखा हुआ है. उसका बैलेंस हमको गिवन है 15,000 रुपीज. टोटल परचेजेस हमको गिवन है यहाँ पे, तो मैं मान लूंगा कि ये पूरी की पूरी क्रेडिट ही है, क्योंकि कोई बाइफर्केशन दे नहीं रखा है यहाँ पे. वी नीड टू कैलकुलेट द पेएबल पीरियड अप्रोक्सीमेटली. तो पेएबल पीरियड हमको निकालना है यहाँ पे, राइट. चलिए चालू करते हैं. पेएबल टर्नओवर रेशो निकाल लेता हूं सबसे पहले. पेएबल टर्नओवर रेशो का मतलब क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स. सो क्लियरली क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 लाख रुपीस की मेरी क्रेडिट परचेजेस है. नो बाइफर्केशन इज गिवन, सो आई एम अज्यूमिंग दैट टोटल की टोटल क्रेडिट है. Average creditors are already given 15,000. So this comes to approx 13.33. Okay, now this is payables turnover ratio that you need to remember. ये times में आता है. Okay,
और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पेएबल पीरियड पूछा गया है, ओके, पीरियड, दिन पूछे गए हैं। पेएबल पीरियड मींस कि आप कितने दिन में अपने क्रेडिटर्स को सेटल कर देते हो, एंड हाउ मेनी डेज ऑन एन एवरेज यू सेटल योर क्रेडिटर्स, ओके। स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है। जैसे ही ये 13.33 आंसर आता है वो यहाँ पे 13 डेज को टिक करके आ जाते हैं, राइट। ये गलत आंसर है। आपसे क्वेश्चन के अंदर पेएबल टर्नओवर रेशियो पूछा ही नहीं गया है, दे हैव आस्क्ड यू पेएबल पीरियड, ओके। सो पेएबल पीरियड का यहाँ पे फॉर्मूला होता है 365 days divided by payable turnover ratio. So 365 divided by 13.33 times. This comes to 27 point something something. So यहाँ पे approximately आपका 28 days correct answer हो जाएगा. So B will be your correct answer here. बी केयरफुल की क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पेएबल पीरियड पूछ रहा है या फिर पेएबल टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है, दोनों बहुत ही अलग चीज होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 persons एग्री टू एक्सचेंज 100 ग्राम ऑफ गोल्ड 3 months लेटर। एक पर्सन ए था, एक पर्सन बी था, दोनों आपस में एग्रीमेंट किया गोल्ड रिलेटेड कि 100 ग्राम ऑफ गोल्ड वी विल बी एक्सचेंजिंग 3 months लेटर एट 400 पर ग्राम। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? सो द ऑप्शंस आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, स्वैप और एनीवन बिटवीन ऑप्शन और स्वैप। तो बेसिकली जिसने भी डेरिवेटिव्स पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, राइट, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ए विल बी योर करेक्ट चॉइस। दिस इज अ काइंड ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये ओटीसी है, ओवर द काउंटर ट्रेडेड है, राइट। ये कस्टमाइज भी हो सकता है। दिस इज नॉट अ एक्सचेंज ट्रेडेड। इन केस इफ इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड देन द आंसर विल बी डेफिनेटली फ्यूचर्स। ऑप्शंस और स्वैप यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो एजेंसी इन्वॉल्व, देयर इज नो एक्सचेंज इन्वॉल्व। ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं, ये एक्सचेंज ट्रेडेड बिल्कुल नहीं होते। दे आर हाईली कस्टमाइजेबल, प्लस ये स्टैंडर्डाइज्ड बिल्कुल नहीं होते। स्टैंडर्डाइज तो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू योर बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव फाइनेंस का चैप्टर। नेक्स्ट इज योर financial instruments such as call money, commercial paper, bill of exchange, treasury bills are traded in which of the following market? ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, 1 साल से अंदर अंदर वाले। सो ये आपका फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन है। द आंसर इज मनी मार्केट हियर। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे 1 year से अंदर अंदर वाले इंस्ट्रूमेंट सारे आते हैं। सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट जिनके एग्जाम्पल्स होते हैं कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज और ट्रेजरी बिल। So B is the correct choice here. Next, the capital required for day-to-day business operations is known as the working capital. How do we calculate the working capital? तो जो डेली एक्सपेंस के लिए कैपिटल, तो जो डेली बिजनेस चलाने के लिए हमको कैपिटल चाहिए होती है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे हमको उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो निकालना है। सो बेसिकली इट इज योर करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वी कैन से इट एज नेट करंट असेट ऑल्सो। सो B is the correct choice here. अच्छा, one thing to note here is if somebody is asking you working capital, that means he is asking you net working capital, okay? Generally working capital, net working capital को हम एक जैसा बोलते हैं। Somebody asked you specifically gross working capital, then the answer will be current asset and not current asset minus current liability. Gross working capital का मतलब सिर्फ current asset का total होता है। Net working capital का मतलब current asset minus current liability होता है। Very very important for your examination. If the organization has budgeted sales greater than the break even, अच्छा break even का नाम आते ही समझ जाना चाहिए कि this question is from your marginal costing वाला chapter. So your budgeted sales is greater than the break even level of sales, great. अच्छा, अगर break even मेरा 100 units पे ही हो जा रहा है और budgeted sales मतलब मेरी ज़्यादा है, मतलब मैं कुछ ना कुछ तो profit कमा रहा हूँ इन 50 units पे, right? Then the margin of safety will be, अच्छा हमने पहले वाले लेक्चर में भी देखा था, पहले तो बिजनेस जो है वो लॉस मेकिंग होता है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक आने के लिए, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट पे वो अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर चुका होता है। उसके बाद जो भी वो कंट्रीब्यूशन कमाता है, वो कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूट करता है, जिसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, राइट। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एनीथिंग अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। सो हियर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस एग्जाम्पल के अंदर आपका 50 हो गया, राइट। क्वेश्चन ने आपसे थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज पूछ लिया है। पहले तो उसने आपको बता दिया कि बजटेड सेल्स इज मोर देन द ब्रेक इवन सेल्स, राइट।
अभी अगर हम सिर्फ ब्रेक इवन सेल्स पे होते तो आपका क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता? बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम ब्रेक इवन सेल्स पे होते तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जीरो, बट वी आर ऑलरेडी अबाउ द ब्रेक इवन पॉइंट, सो दैट मीन्स योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल डेफिनेटली बी greater than zero here, right? So B will be the correct choice. Next option is as laid down by the Companies Act, every company shall hold a first meeting of the board of directors within 30 days of the date of incorporation. बिल्कुल ठीक बात है, एक कंपनी अपनी पहली बोर्ड मीटिंग रखेगी 30 दिन के अंदर अंदर जहां से वो इनकॉर्पोरेट हुई है। अगर मैंने आज कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है तो अगले 30 डेज के अंदर आई विल बी अरेंजिंग अ फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली मीटिंग। Thereafter, उसके बाद हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बीओडी एवरी ईयर। चलो पहली बार का समझ में आता, विद इन 30 डेज यू विल होल्ड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। व्हाट अबाउट आफ्टरवर्ड्स? सो अ मिनिमम नंबर ऑफ 4 इज रिक्वायर्ड आफ्टरवर्ड्स। वंस यू आर डन विद द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एज पर सेक्शन 173 which is related to meetings of the board of directors, every company shall hold first meeting of the board of directors within 30 days, that we already know. Thereafter hold a minimum number of 4 meetings, कम से कम 4 मीटिंग तो आपको करनी पड़ेगी every year in such a manner that not more than 120 days shall intervene between the 2 consecutive meetings of the board. So basically अगर मैंने subsequently एक बोर्ड मीटिंग यहाँ पे कर ली तो 120 दिन मैक्सिमम आपको टाइम गैप रख सकते हो, उसके अंदर सेकेंड बोर्ड मीटिंग आपको फिर से करनी पड़ेगी। 120 दिन से ज्यादा आप एक्सीड टाइम लिमिट को नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंश्योरिंग दैट वन इंडिविजुअल डज नॉट कैरी द बर्डन of the whole work task referred to as, so this is obviously related to your management subject. यहाँ पे वन इंडिविजुअल को ही सारे का सारा बर्डन नहीं दिया जा रहा है, मतलब बेसिकली सम काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन इज देयर। आंसर इज ए वर्क स्पेशलाइजेशन. So this ensures the work is demarcated in proportion to workers' ability to carry it out. अभी कोई मार्केटिंग का है तो उसको मार्केटिंग वाला काम दिया जाएगा, कोई फाइनेंस का है तो उसको फाइनेंस वाला काम दिया जाएगा, राइट? कोई अकाउंटिंग का है तो उसको अकाउंट्स का काम दिया जाएगा. सो इन दिस वे वी मेंटेन द वर्क स्पेशलाइजेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे काम कर रहे हो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे ज्यादा फोकस कर रहा हो, उसको आगे लेके जा रहा हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज. सो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का दूसरा नाम यहाँ पे आपका होता है टी ग्रुप ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग ग्रुप और ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग ग्रुप और एनकाउंटर ग्रुप. सो बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप ट्रेनिंग दैट फोकसेस ऑन हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स टू develop a better awareness of group dynamics and their role in the group. अच्छा, it was developed by Kurt Lewins and Ronald Lippett in 1940. So इसका दूसरा नाम आपका हो गया यहाँ पे T group training. Next is which of the following is an example of given goods? So this concept is related to your economics और definitely last question है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे comment section के अंदर and then we will be discussing about this in the next coming video. Thank you so much for watching this video. Join iExamB and prepare 50% faster.